آپ کو براہ راست گوادر یہ چلتے جہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف ایسٹ بے ایکسپریس تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ وزراء کا، لا انفورسنگ ایجنسیز کا اور جناب وزیر اعلیٰ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ ان تمام کاموں کے لیے پوری تندہی سے اپنی ذمہ داری سر انجام دے رہے ہیں۔ آج میں نے پہلے جناب احسن اقبال صاحب جو ہمارے وفاقی وزیر ہیں، اس سارے کام کی نگرانی وہ کر رہے ہیں، اور جناب وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ اور دوسرے ہمارے جو محترم وفاقی وزراء ہیں، مولانا اسد صاحب، نواب زادہ جین بگٹی صاحب، بھوتانی صاحب اور دوسرے ہمارے ساتھی، اور محترمہ پینگ جو چارج دی افیئر ہیں، اور ہمارے فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ آفیشل کے ساتھ ہم نے میٹنگ کی، اور ساری یہاں پر جو ترقیاتی کاموں کا ہم نے جائزہ لیا، اس کے اوپر گفتگو کی۔ مجھے یہ کہنا ہے کہ کام کی رفتار تسلی بخش ابھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ابھی تک گوادر ایئرپورٹ مکمل نہیں ہو سکا، اور مجھے یاد ہے 2017-18 میں 2017-18 میں اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا، اور ابھی تک یہ تعمیر کے مراحل طے کر رہا ہے، حالانکہ یہ 100% چین کی صدر جناب شی جن پنگ اور پریمیئر لی نے ایک گرانٹ کے طور پر تحفہ ہمیں عطا کیا ہے، اور اس کو بھی ہم مکمل نہیں کر پائے۔ اسی طریقے سے گوادر کے عوام کے لیے پینے کا پانی جو ہے وہ ابھی تک مکمل طور پر وہ مہیا نہیں کیا جا سکا، اور آج مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ اب 3rd فیز میں یہاں پر جو واٹر پائپ جو ہیں وہ بہت ایک پرانے زمانے کی لگی ہوئی ہیں، ان کو تبدیل کرنا ہے۔ اور پھر یہ بھی بات سامنے لائی گئی کہ جو پانی کا جو ذخیرہ ہے وہ بسا اوقات اس میں کمی آ سکتی ہے، لہذا بطور ایک فال بیک پوزیشن کے آلٹرنیٹ آپشن کہ ہمیں ڈیسیلینیشن پلانٹس لگانا ہوں گے۔ مجھے بڑا افسوس ہوا سن کے کہ بھئی آپ نے اربوں روپے تو اپنا ذخیرہ اندوزی میں خرچ کر دیے، پانی کا ذخیرہ کیا ہے، اور اب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر پانی کی کبھی کسی وقت سیزن میں کمی ہوتی ہے تو ہمیں پھر ایک ڈیسیلینیشن پلانٹ لگانا پڑے گا، جس کے اوپر بھی اربوں روپے خرچ ہوں گے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ پہلی فرصت میں یہ ڈیسیلینیشن پلانٹ لگ جاتے اچھے سستے زمانوں میں، اور آج گوادر کے ہر گھر میں پینے کا پانی مہیا ہوتا۔ اسی طریقے سے جو یہاں پر بجلی کی جو یہاں پر قلت ہے، اور جو بجلی لانے کا منصوبہ ہے اس کے لیے ٹرانسمیشن لائنز بچھائی جانی ہیں، اور دوسرے جو وہاں پر سٹیپس ہیں وہ لیے جانے ہیں، جس کو کئی سال لگ گئے ہیں۔ اور اب مجھے جناب وزیر اعلیٰ صاحب بتا رہے تھے کہ اس کے لیے اب ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے ابھی چند مہینے پہلے یہ منصب کا حلف لیا ہے۔ اسی طریقے سے اور جو دوسرے معاملات ہیں وہ سست روی کا شکار ہیں۔ تو آج میں نے ٹارگٹس فکس کیے ہیں، جناب احسن اقبال صاحب کو میں نے گزارش کی ہے کہ تمام جو متعلقہ جو افسران ہیں
और वज़रा को वो फौरी तौर पर उनसे मीटिंग करें और मीटिंग करके टाइम लाइन के साथ हर मंसूबे की तामीर का वक्त मुकर्रर करें। इसी तरीके से आपको ये जानकर अफसोस होगा कि गवादर पोर्ट, जिसको दुनिया की जितनी भी डीप सी पोर्ट्स हैं उनमें ये भी पोर्ट शुमार होती है और शुमार किया जाता रहा, लेकिन शूमी किस्मत देखें कि इस अरसे में एक तो कोई ज़्यादा जो बिज़नेस ना हो सका और शिप्स ज़्यादा ना आए, उसकी वजूहात हैं वो मैंने डिस्कस की हैं कि बिज़नेस मॉडल और फिर जो गवादर पोर्ट की जो अथॉरिटी है उनसे भी बात हम करेंगे और अभी करेंगे, लेकिन उसकी ड्रेजिंग नहीं हुई और चूंकि ड्रेजिंग नहीं हुई तो सिल्टिंग हुई और जो डेप्थ है वो कम हो गई और जो हैवी शिप्स हैं अब वो यहाँ पर नहीं आ सकते तावक्त है कि इसकी ड्रेजिंग की जाए और जो डेप्थ जो है उसको रिस्टोर किया जाए। ये वो इश्यूज हैं जो कि आज मैंने गवादर पोर्ट पे मैंने डिस्कस किए हैं और इसके लिए मैं चाहूँगा कि वॉर फुटिंग के ऊपर हम इसके ऊपर इक़दामात उठाएं। यहाँ पर चूँकि मैं एक पब्लिक गुफ्तगू कर रहा हूँ और शाहजी हफीज़ भी तशरीफ़ फरमा हैं और चीनी कंपनियाँ भी यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने डीसैलिनेशन प्लांट, छोटा प्लांट पोर्ट पे अपनी ज़रूरत के लिए लगाया। और अब अगर हमें गवादर के लिए, आवाम के लिए ऑल्टरनेट ऑप्शन बनानी है तो मैं यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पे ये डीसैलिनेशन प्लांट लगाया है, चार्ज अफेयर्स भी तशरीफ़ फरमा हैं, मेरी ये तजवीज़ है कि G2G मॉडल के तहत इस गवादर शहर के लिए डीसैलिनेशन प्लांट्स लगाने के लिए हम फिलफौर बातचीत शुरू करें और मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर इसके ऊपर अमली इक़दामात उठाने जाने चाहिए। इसमें कोई ताख़ीर नहीं होनी चाहिए और इसके लिए जनाब एहसन इकबाल साहब और वज़ीर आला साहब से दरख्वास्त है कि वो फौरी तौर पर इसके ऊपर इक़दामात उठाएँ। रही बात बिजली के हवाले से, तो ईरान से अगर बिजली हम ला सकते हैं तो बहुत खुशी होगी और बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई साल से ये मंसूबा बहुत ताख़ीर का शिकार रहा है। मेरी आज तजवीज़ है चाइना की यहाँ पे चार्जी अफेज़ तशरीफ़ फरमा हैं और वो कंपनी जिन्होंने गवादर में 3200 घरों के लिए सोलर पैनल्स अतिये के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर तकसीम किए हैं, वो कंपनी और दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर बात होनी चाहिए और ऐसा बिजनेस और फाइनेंशियल मॉडल हम बनाएं। मैंने एहसन इकबाल साहब को मैंने गुजारिश की है कि फौरी तौर पर जो एक गवादर में रहने वाला एक घराना मिसाल के तौर पर अगर बिजली का 400 या 500 रुपये का बिल अदा करता है माहाना या 1000 रुपये या 2000 रुपये, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, वो बजाय ये बिजली का बिल वो सारा साल अदा करता रहे, उसको, उस घराने को और इन हज़ारों घराने को हम बैंकों के ज़रिए हम रकूम दिलवाएंगे और एक इंतहाई शफाफ तरीके से बिडिंग के ज़रिए हम चीन की कंपनियां या दूसरे ममालिक की कंपनियां वो खुली शफाफ बोली के तहत वो इन घरानों के लिए एक अच्छे माकूल जो साइज़ के जो सोलर पैनल्स हैं जिनमें घर के
2-3 बल्ब भी जल जाएं, पंखा भी जल जाए, और फिर अगर फ्रिज है छोटा मोटा वो भी काम करता रहे, ताकि सौदा सल्फ वहाँ पर एक ख़ास डिग्री पर वो मौजूद रहे, प्रोटेक्ट रहे। तो ये हज़ारों सोलर पैनल्स जिनकी कारकर्दगी वो उसकी गारंटी हो, और फिर जब ये प्रोक्योर कर दिए जाएं और उन घरानों में लग जाएं, तो वही कंपनी कम से कम 5 साल के लिए आफ्टर सेल सर्विस का एग्रीमेंट हो, और वो उनको, ताकि घर वालों को ये तकलीफ या ये एक एहसास ना हो कि अगर ख़राबी हुई तो कौन ठीक करेगा। तो ये आफ्टर सेल सर्विस वही सप्लायर्स कंपनी वो मुहैया करेगी। एक ये मॉडल है। दूसरा मॉडल ये है कि गवादर में 100 या 150 मेगावाट के मुख्तलिफ जो गवादर और साथ वाला जो ज़िला है जी नहीं, अभी वो बात कर रहे थे गवादर और एक दूध उसके साथ मैं तुम्हें बताऊँ पसली, ये जो मुल्का इलाके हैं उनके लिए हम सोलर पार्क्स लगा दें और ऑफ ग्रिड बिजली वहाँ के रहने वालों को मुहैया हो, ताकि वहाँ पर बिजली मुहैया की जाए और उसी कंपनी को वो पेमेंट दें फी घराना जो भी बिजली का खर्च होगा। एक अच्छे शफाफ तरीके से हर चीज़ तय हो जाएगी। तो ऑफ ग्रिड वहाँ पर सोलर प्लांट्स लग जाएं और उन शहरों और कस्बों में बिजली मुहैया की जाए, ये शमसी तवानाई की, और वहाँ से जितने वहाँ पर घराने हैं जो बिजली इस्तेमाल करेंगे तो वो बिल अदायगी उस कंपनी को दे देगी। ये है वो 2 तरीके के मॉडल्स जो कि फिलफौर हम यहाँ पर लॉन्च करेंगे। तो इंशाअल्लाह यहाँ पर बिजली का मसला देर पा और लॉन्ग टर्म बुनियादों पर इंशाअल्लाह यहाँ पर हल हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे जो ड्रेजिंग है वो पोर्ट अथॉरिटी के साथ मैंने एहसन इकबाल साहब को कहा है कि मिलकर ये समुंदर की जो ड्रेजिंग करनी है पोर्ट अथॉरिटी के साथ मिलकर तय हो जाएगा। और पोर्ट अथॉरिटी अगर ड्रेजिंग कर दे तो हमारा जो 9% या 10% जो हमारा शेयर है वो सालाना उसमें से उसकी कटौती होती रहेगी। ये भी एक मॉडल है। हम खुद भी अपने वसाइल से 4-5 अरब रुपए खर्च करके इंशाअल्लाह ड्रेजिंग कर सकते हैं। मगर क्या कीजिएगा कि माजी की इस गफलत का ना ड्रेजिंग हुई और उससे सारा मामला बिल्कुल रुक गया और तातुल का शिकार हो गया। यहाँ पर जनाब चीफ मिनिस्टर साहब ने और भी मसाइल का जिक्र किया है। मिसाल के तौर पर जो कस्टम्स की बात की है वो मैंने नोट कर ली है और मैंने एहसन इकबाल साहब को गुजारिश कर दी है कि वो फिलफौर इसके ऊपर वो मीटिंग करें और जो आपके जायज़ मुतालबात हैं उनको फौरी तौर पर उनको यहाँ पे हल करवाया जाए। इसके अलावा यहाँ पर जो फिशरमैन हैं या हमारे मछेरे भाई, उनके लिए उनकी जो कश्तियाँ हैं मछलियाँ पकड़ने के लिए, उनके लिए उनको एक इंजन दरकार है और ये कोई 2000 ये कोई कश्तियाँ बनती हैं। मैं यहाँ पर ऐलान करना चाहता हूँ कि इन 2000 ऐसा आपने मुझे 2000 फरमाया था चीफ मिनिस्टर साहब, आपने 2000 कहा था। पहले ये फैसला कर लें, इस तरह कर लेते हैं कि 20,000 या 2,000 की बहस में नहीं पड़ते। हम एक क्राइटेरिया बना लेते हैं कि इन दी ऑर्डर ऑफ मेरिट कि सबसे ज़्यादा डिजर्विंग कौन से घराने होंगे मछलियाँ पकड़ने वाले। तो उनमें से पहला बैच जो है
2000 का प्योरली ऑन मेरिट और इसकी बैलेटिंग भी हो सकती है शफाफ तरीके से। इन 2000 घरानों को वफाकी हुकूमत इंजन फ्री अतिये के तौर पर अदा करेगी इंशाअल्लाह। और फिर जो अगली जो किस्त है ऊपर इंशाअल्लाह एहसन इकबाल साहब वो मरहलावार ये इसका इंतज़ाम करेंगे। पहली जो किस्त है 2000 इंजन्स की, उनको हम इंशाअल्लाह एक क्राइटेरिया के तहत शफाफ तरीके से बैलेटिंग के ज़रिए यानी कुरान अंदाज़ी के ज़रिए कंप्यूटराइज्ड हम इंशाअल्लाह 2000 इंजन गवादर के अपने मशरे जो हमारे भाई हैं उनको हम मुफ्त इंजन इंशाअल्लाह उनकी खिदमत में हम देंगे। इसी तरीके से जो जो कस्टम्स की जो चेक पोस्ट है और वहाँ पर जो मामलात हैं, इस हवाले से भी मैं गुजारिश कर चुका हूँ एहसन इकबाल साहब से कि वो मेहरबानी करके इसके ऊपर तमाम मामलात के ऊपर तसल्ली बख्श गुफ्तगू करें और इंशाअल्लाह इनका फिल फॉर हल ढूंढें। आखिरी बात, मैं अपनी बात ख़त्म करने से पहले दो बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पिछली मरतबा यहाँ पे गवादर यूनिवर्सिटी का ऐलान किया गया था। आज मैं ये आपके सामने ऐलान करता हूँ कि इस बजट में गवादर यूनिवर्सिटी के फंड्स मुहैया किए जा रहे हैं और इसको हम इंशाअल्लाह इस मंसूबे को फिल फॉर हम इसको इंशाअल्लाह इसको अमली जामा पहनाएंगे। आपके इल्म में है कि कल रात तेल और पेट्रोल की कीमतों में फिर दिल पे पत्थर रखकर मजबूरन इजाफा करना पड़ा, इसलिए कि जब से हमारी हुकूमत आई है 11 अप्रैल इस साल 11 अप्रैल को मैंने अल्लाह ताला के फजल करम से और आपकी दुआओं से हल्फ उठाया था और पिछली हुकूमत ने तेल और पेट्रोल की कीमतें आलमी मंडियों में आसमान से बातें कर रही थी, मगर 3.5 साल उस हुकूमत को कभी तौफीक नहीं हुई कि आटे चीनी दाल में कोई आवाम को रिलीफ मुहैया किया जा सके और दीन और दुनिया दोनों कमाएं, लोगों की गरीब लोगों की दुआएं लें। कभी उनको एहसास नहीं हुआ, जू तक न रेंगी। लेकिन जब उनको ये एहसास हुआ कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ कामयाब होने वाला है, तो उन्होंने यकायक तेल और इसके पेट्रोल की कीमतें जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं और वो आसमान से बातें उनकी कीमतें कर रही थी और हैं, अब और भी बढ़ गई हैं। उन्होंने कीमतें कम कर दी और हमारे लिए एक जाल फेंका कि उसमें जो हम फंस जाएं। हमने एक हफ्ता पहले तक पूरी कोशिश की कि ये अवाम के ऊपर ये हम इजाफी बोझ ना ला दें, लेकिन पिछली हुकूमत ने बगैर फंड्स के और कर्ज के ऊपर ये मुल्क ये जिंदगी बसर कर रहा है। कर्ज के ऊपर हम हर सांस लेते हैं, तो ये किस तरह मुमकिन है कि बाहर की जो दिन रात इस्तेमाल होने वाली शय तेल और पेट्रोल वो जो बाहर से आता है, बदकिस्मती से पाकिस्तान में सुई अगर गैस थी वो ख़त्म होने वाली है और इस तरह बाकी जगहों पर बहुत यानी ना होने के बराबर हमारे गैस और तेल है। तो 98% हमारे जो हमारी जो ज़रूरियात है वो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं, उनके ऊपर किस तरह सब्सिडी दी जा सकती है कर्ज लेकर। मगर उन्होंने ये किया और हमने पूरी कोशिश की इसको रोके, लेकिन फिर हमें मजबूरन ये इजाफी बोझ हमें देना पड़ा क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। मगर इसके साथ हमने
जो गरीब तबके हैं इस मुल्क में 8 करोड़ अफराद, उनके लिए हमने 2000 रुपये महीना हमने उनको सब्सिडी दी, ताकि जिसके पास स्कूटर है वो पेट्रोल लेने के लिए 2000 रुपये इस्तेमाल कर सकता है, जिसने बस का सफ़र करना है वो इन 2000 रुपये में से बस की टिकट खरीद सकता है, जिसने बच्चों की तालीम के लिए कोई इंतज़ाम करना है तो वो इसमें से खर्च कर सकता है। यानी ये कोई पाबंदी नहीं कि आपने सिर्फ तेल या पेट्रोल के ऊपर खर्चना है। अगर आप उसके हकदार हैं तो 2000 रुपये आप किसी भी आइटम के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरीके से इंशाअल्लाह हम मज़ीद गरीब आवाम को, हमारा दिल उनके साथ धड़कता है, और मैं ये बात कोई कहने के लिए नहीं कह रहा, ये मैं खलूसे दिल के साथ कह रहा हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ और हमारे तमाम इत्तेहादी जमातों के ज़ुलमा और तमाम हमारी पार्टीज़ के मेंबरान और हम सब इस बात के ऊपर यकसू हैं कि इस मुल्क के ऊपर गरीब आवाम के ऊपर मज़ीद बोझ लादना किसी भी तरह किसी जुल्म और ज़्यादती से कम नहीं है। मगर हमें कल रात फिर हमें ये कीमतें मजबूरन बढ़ानी पड़ी, और मैं आपको आज ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कल मैंने मीटिंग रखी है, और अगर गरीब आवाम इस मुल्क के लिए हमेशा 75 साल में उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, अपना खून पसीना उन्होंने निछावर किया इस कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए, दहका में, फैक्ट्रियों में उन्होंने दिन रात काम किया है, तो जो अशराफिया है जिनको अल्लाह ताला ने तमाम नेमतों से नवाजा है, जो अरब खरबपति हैं, उनका भी आज हक है और फ़र्ज़ है वो आगे बढ़ें और कुर्बानी दें, जज्बा इसार से, कुर्बानी से वो इस गरीब कौम के लिए आगे बढ़ें और वसाइल मुहैया करें, सादगी इख्तियार करें, ताकि गरीबों को भी, आम आदमी को भी ये एहसास हो कि अगर हम मुश्किल वक्त गुजार रहे हैं तो वो साहिब हैसियत जिनको अल्लाह ताला ने बेपनाह वसाइल से नवाजा है, या फिर जिनके पास दौलत के वसाइल ऐसे हैं जो कि यहाँ पर बात करना मुनासिब नहीं, तो पर आज उनका फ़र्ज़ है और मैं इसको यकीनी बनाऊंगा इंशाअल्लाह कि वो अपने वसाइल गरीब आवाम के कदमों में निछावर करें। कल मैं इंशाअल्लाह मीटिंग कर रहा हूँ हुकूमत के हवाले से भी, और सबसे पहले इसकी शुरुआत मुझ नाचीज़ से शुरू होंगी, वज़रा के ऊपर लागू होंगी, मशहूरों के ऊपर लागू होंगी, सेक्रेटरीज़ के ऊपर लागू होंगी, फेडरल सेक्रेटरीज़ हों, प्रोविंशियल सेक्रेटरीज़ हों, सरकारी अफसरान हों, सियासतदान हों, सबको इस कार्य खैर में हिस्सा डालना होगा, सादगी इख्तियार करनी होगी और सख्त इक़दामात सहने होंगे, तभी ये मुल्क, खुदादाद मुल्क पाकिस्तान, ये कायद आज़म, हज़रत कायद आज़म की सही तस्वीर बन सकेगा और उनके ख्वाब की ताबीर बन सकेगा। इसके बगैर वो ख्वाब हमेशा अधूरा रहेगा। इसके लिए इंशाअल्लाह मैंने कल मीटिंग का मैंने एहतमाम किया, और उसके बाद इंशाअल्लाह मैं जो जायज़ इक़दामात हैं और इक़दामात हैं वो कितने भी सख्त हैं, वो उमरा को भी, अशराफिया को भी, हुकूमत को भी, वज़ीर आज़म को भी, वज़ीर आला को भी, गवर्नर्स को भी और अफसरान को भी वो इक़दामात उनको कबूल करने होंगे, ताकि ये कौम मिलकर हम दिन रात मेहनत करेंगे, सादगी इख्तियार करेंगे, कुर्बानी देंगे, तो इंशाअल्लाह ज़रूर वो वक्त आएगा कि हम इंशाअल्लाह इन चैलेंजेस को अबूर करते हुए इंशाअल्लाह पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की तरफ लेके जाएंगे। मेरा ये ईमान है, अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर पूरा मुकम्मल तवक्कुल है इंशाअल्लाह, और वो खुदा जिसने ये दुनिया बनाई, इंसान पैदा किए, इंशाअल्लाह वो किसी की मेहनत को, इसार को, कुर्बानी को, जज्बा हुब्बुल वतनी को वो रायगा नहीं जाने देता। यही कुरान करीम का उसका हुक्म बार बार हम
रोज़ पढ़ते हैं, जब तिलावत करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारा ये जज्बा ईमानी है, सिद्क़ दिल से हम इस बात को कबूल करते हैं, यकीन करते हैं कि इंशाअल्लाह जब हम मिलकर ये तमाम इक़दामात उठाएंगे तो ज़रूर अल्लाह ताला अपनी कमाल मेहरबानी से हमारे मसाइल को हल करने की ज़रूर फ़ैसला फरमाएंगे, बरकत डालेंगे और इंशाअल्लाह हम शबाना रोज़ मेहनत करेंगे तो वो मंजिल जिसके लिए पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया था वो ज़रूर हम इंशाअल्लाह हासिल करेंगे। आखिर में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ग्वादर में ईस्ट बे एक्सप्रेस वे की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ग्वादर से कराची तक ट्रांसपोर्ट में बेहतरी होगी। उन्होंने कहा ग्वादर में तरक्याती कामों का आगाज हुआ है। ग्वादर में 3200 घरों के लिए चीन सोलर पैनल्स मुहैया करेगा। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ ही रहिएगा।